بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بابل کا آنگن۔ ماشاءاللہ خیر سے آج چھوٹی بہو کی کھیر پکائی کی رسم بھی ادا ہو گئی ہے۔ کچھ باتیں میں واضح کرنا چاہتی ہوں۔ راشدہ بیگم کی پاٹدار آواز نے صحن میں بیٹھے سب لوگوں کو ایک دم خاموش کر دیا۔ سب گردن گھما کر ان کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھنے لگے، جبکہ چھوٹی بہو یعنی نائلہ گھبرا گئی کہ نہ جانے ساس کیا نیا حکم صادر فرمانے لگی ہیں۔ اس نے کچھ دور بیٹھے اپنے شوہر محسن کی طرف دیکھا، جس نے مسکرا کر تسلی دی، جبکہ بڑی بہویں فرحانہ اور طاہرہ نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کئی سال پہلے وہ بھی ان دیکھے بھالے مناظر سے گزر چکی تھیں، اس لیے مطمئن ہو کر مزیدار کھیر کھاتی رہیں، جبکہ ان کے بچوں نے صحن میں ادھم مچا رکھا تھا۔ نائلہ کی بیاہی 2 عدد نندیں بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ صبح سے میکے آئی ہوئی تھیں۔ حمیرہ اور نادیہ ماں کے دائیں بائیں بیٹھی تھیں۔ آج سے اس گھر کی ذمہ داری بڑی 2 بہوؤں کی طرح تم بھی بانٹو گی۔ مجھے امید ہے کہ تم پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حصے کے کام سر انجام دو گی۔ راشدہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ جی ضرور، میں سب کام دیکھ لوں گی، نائلہ نے جلدی سے کہا تو راشدہ بیگم نے اسے گھورا، کیونکہ اس کی تیز رفتاری میں ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ انہوں نے ٹوکا تو وہ شرمندہ ہو گئی، جبکہ حمیرہ اور نادیہ ایسے ہنسی جیسے اس سے زیادہ مزاحیہ بات پہلے نہیں سنی تھی۔ نائلہ کو برا لگا، مگر ضبط کر گئی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میری دونوں بیٹیوں کے لیے بابل کا آنگن ہمیشہ وسیع اور کشادہ رہے گا۔ میری بچیاں جب چاہیں جتنے دن چاہیں یہاں آ کر رہیں گی، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ بڑی دونوں بہوؤں نے بھی اس بات کو خوش دلی سے قبول کیا تھا۔ میں تم سے بھی اسی سوچ کی امید رکھتی ہوں۔ راشدہ بیگم نے بات ختم کی تو نائلہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی کہ شاید آگے بھی کچھ کہنا ہے۔ اس کی سادگی دیکھ کر راشدہ بیگم جزبز ہو کر رہ گئیں۔ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، میں سمجھی کہ شاید آپ نے کچھ خاص کہنا ہے، نائلہ نے جلدی سے کہا تو وہ تینوں چونک گئیں، جبکہ طاہرہ اور فرحانہ کا دل کیا اپنا سر پیٹ لیں۔ اسے ابھی اندازہ نہیں کہ محبت کے ایسے پہاڑ سر کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ فرحانہ بڑبڑائی۔ طاہرہ نے بھی سر ہلایا۔ ہماری چھوٹی بہو تو بہت سمجھدار ہے۔ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، محسن تم بھی ساتھ چلو۔ عثمان اور انور دکان سے واپسی پر مسجد ہی آ جائیں گے۔ عبد الرحمن نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے نائلہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور وضو کرنے کے لیے چلے گئے۔ نائلہ نے مسکرا کر محسن کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر بھی اسے دیکھ کر روشن مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ان دونوں کی روشن مسکراہٹ راشدہ بیگم کے ساتھ ساتھ حمیرہ اور نادیہ کی آنکھوں میں بھی چبھی تھی۔ یہ کیا بنا رہی ہو؟ طاہرہ اور فرحانہ کھانے کے برتن اٹھا کر کچن میں آئیں تو نائلہ کو مصروف دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ طاہرہ بھابھی، نادیہ باجی کے بچوں نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا ہے، ان کے لیے چپس بنا رہی ہوں، نائلہ نے جلدی سے کہا۔ کھانا تو ٹھیک ہی کھایا ہے، مگر ان کی عادت ہے ہر وقت فرمائشیں کرنے کی، اس لیے پہلے ہی منع کر دیا کرو، بعد میں بہت تنگ ہوگی، فرحانہ نے جھوٹے برتن سنک میں رکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، بچے ہیں، نائلہ نے لاپرواہی سے کہا تو وہ دونوں سر جھٹک کر جلدی سے کچن صاف کرنے لگیں۔ وہ سب دوپہر کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے۔ 3 طرح کے سالن، چاول، شامی کباب، رائتہ، سلاد کے باوجود بھی بچوں نے مختلف فرمائشیں کر کے ان کا ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ حمیرہ کے 4 بچے تھے، جن کی عمریں 6 سال سے 12 سال کے درمیان تھیں، جبکہ نادیہ کے 3 بچے تھے جو 4 سال سے 7 سال کے درمیان تھے۔ دونوں کے ہی بچے بہت ضدی اور شرارتی تھے، کیونکہ نانی کے گھر آ کر انہیں ایسی آزادی مل جاتی تھی جیسے قید سے آزاد ہوئے ہوں۔ یہاں 3 ممانیاں مستعد خادموں کی طرح ان کے آگے پیچھے پھرتی تھیں۔ اپنے گھروں میں تو مائیں ایک سے دوسری فرمائش پر 2 ہاتھ جڑ دیتی، مگر یہاں ان کا درجہ شہزادے اور شہزادیوں والا تھا۔ نانی اور نانا تو دیوانے تھے ہی، تینوں ماموں بھی نانی کے حکم کی ڈگڈگی پر ان کو خوش رکھنے کے لیے کرتب دکھاتے۔ فرحانہ اور طاہرہ نے کئی سال یہ تماشا دیکھا، مگر اب ان کے بچے لڑکپن کی حدود میں داخل ہو رہے تھے۔ بہت سی باتیں اور چیزیں ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں، کیونکہ اب ان کے سامنے اپنی اولاد کھڑی تھی، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اس کے لیے اب فیصلہ کن مراحل آ چکے تھے، بس اعلان کرنا باقی رہتا تھا۔ شدید گرمی کی طویل دوپہریں تھیں۔ جوائنٹ فیملی ہونے کی وجہ سے صبح ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک
कामों की तवील लिस्ट उनकी मुंतज़िर थी। नादिया और हुमैरा के मैके आकर रहने से कामों का बोझ बढ़ जाता। नाइला सब कामों से फारिग होकर अपने कमरे में आई तो बेड पर नादिया को तीनों बच्चों के साथ आराम करता देखकर ठिठक गई। हमारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा, इसलिए हम यहाँ सोने के लिए आ गए, नादिया ने इत्मीनान से जवाब दिया। नाइला जो पहले ही गर्मी में झुलसती आई थी, इस बात पर तप गई कि अगर वो यहाँ सोएगी तो वो लोग कहाँ जाएंगे। इस घर में एक कमरा ही इजाफी था जो आए रोज़ मैके आकर रहने वाली दोनों बेटियों के लिए मुख्तस था, मगर हम सब एक कमरे में कैसे सोएंगे। नाइला ने फिक्रमंदी से कहा, मोहसिन अम्मा और अब्बा के कमरे में सो जाएगा, जबकि तुम ज़मीन पर मैट्रेस डाल लेना, अब किसी तरह वक्त तो काटना है ना। नादिया ने इत्मीनान से कहा। नाइला का खून खौल उठा, मगर चुप हो गई कि बहस करने का फ़ायदा नहीं था। वो गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। तुम्हें इसीलिए समझाते थे कि बहुत ज़्यादा नाज नखरे उठाओगी तो अपना नुकसान करोगी। अभी तो गर्मियों की छुट्टियों का पहला हफ्ता है, पूरे 3 महीने मैके में गुजारती हैं। कुछ दिनों में हुमैरा भी बच्चों समेत रहने आ जाएगी। शाम की चाय बनाते हुए ताहिरा ने कहा तो नाइला ने पहली बार उसे नहीं झुटलाया। पिछले 6 महीनों में इसे भी बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि ये सब आसान नहीं है जितना उसने समझ लिया है। शाम को मोहसिन दफ्तर से घर आया तो अपने नए सजे सजाए कमरे की ख़राब हालत देखकर तड़प उठा और बेख्तियार नादिया के बच्चों की बदतमीज़ी की शिकायत की। तो नादिया गुस्से से भरी राशिदा बेगम के पास पहुंच गई। उसने रो धोकर खूब तमाशा लगाया। राशिदा बेगम ने फ़ौरन मोहसिन और नाइला को तलब कर लिया। मोहसिन के साथ साथ नाइला की भी क्लास ली, क्योंकि उनके ख्याल में नाइला ने ही मोहसिन के कान भरे थे। नाइला की भरे घर के सामने इतनी बेइज्जती पहली बार हुई थी। वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुई और कमरा बंद करके बैठ गई। मोहसिन ने पहले नादिया और माँ से माफ़ी मांगकर उन्हें राज़ी किया और फिर नाइला का मूड ठीक करने के लिए रात को आउटिंग पर ले गया। रात 12 बजे हंसती मुस्कुराती नाइला घर में दाखिल हुई तो सहन में लगी नई अदालत उसकी मुंतज़िर थी। वो हक्का बक्का रह गई। अम्मा देखें कितना मीसना है हमारा भाई, बहन और भांजे भांजियों को छोड़कर बीवी को घुमाने ले गया। इतना भी ख्याल नहीं किया कि मुझे आए कुछ दिन ही हुए हैं, बाप के घर ये हमारी अहमियत है। वो रोने लगी। राशिदा बेगम ने उसे गले से लगाकर सख्त निगाह नाइला पर डाली। मोहसिन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से में मुखातिब हुई। बच्चों ने ऐसा भी क्या कर दिया है? नादिया बेटी मेहमान तो नहीं है, उसके वालिदैन का घर है। राशिदा बेगम ने तीखी नज़रों से नाइला को देखा। रात को क्या तमाशा लगाया हुआ है? चलो सब अपने अपने कमरों में जाओ, नादिया और बच्चे हमारे कमरे में सो जाएंगे। अब्दुर्रहमान ने संजीदा आवाज़ में कहते हुए महफिल बर्खास्त की। सब तेज़ी से वहाँ से उठकर चले गए। कमरे में आते ही मोहसिन और नाइला में पहली बहस हुई, जो शायद लड़ाई की सूरत इख्तियार कर गई। कई दिन दोनों ने एक दूसरे को नहीं बुलाया। आने वाले दिन पहले से भी ज़्यादा मुश्किल होते गए। नाइला जो मुरव्वत में सबकी बात मान लेती थी, अब पछताती रहती। नादिया और हुमैरा का हर दूसरे दिन मैके आकर रहना और तवील क़याम करना उनकी ज़िंदगियों को डिस्टर्ब करने लगा था। हर बात पर एतराज़, हर बात में दखल अंदाज़ी। जहाँ जो बात मिजाज के ख़िलाफ़ होती फ़ौरन राशिदा बेगम के कान भर कर लड़ाई करवा देती। नाइला इस माहौल में बहुत परेशान रहने लगी थी। मोहसिन और इसके दरमियान मोहब्बत भरी बातों के बजाय शिकवे शिकायतें या घरेलू साजिशों की बातें होती। दोनों ही तल्ख हो जाते। ये सब ऐसे ही चल रहा था जब नाइला को माँ बनने की खुशखबरी मिली। वो एक प्यारी सी बेटी की माँ बनकर सब तकलीफ़ें परेशानियाँ भूल गई। घर में सभी नए मेहमान की आमद पर खुश थे। जब एक दिन अचानक ताहिरा और फरहाना ने सुलह सफाई और बाहम मशवरे से अलग अलग पोर्शन की बात छेड़ दी। उस्मान और अनवर भी राज़ी थे। थोड़ी सी बहस, बहुत सारी लड़ाई झगड़े और रोने धोने के बाद बिल आखिर वो दोनों अलग हो ही गईं। अब घर की सारी जिम्मेदारी अकेली नाइला के नाजुक कंधों पर आ गई थी। ये आप दोनों की दवाइयाँ हैं, देख लें, अगर कोई कमी हो तो बता दीजिएगा। थका हारा मोहसिन वालिदैन के पास आया। दवाइयों से भरा शापर उन्हें थमा कर पास ही बैठ गया। दवाइयों की कीमतें तो पहले से दुगनी हो गई हैं। अब्दुर्रहमान ने रसीद देखी तो परेशानी से गोया हुए। आप परेशान ना हो, मैं तनख्वाह मिलते ही सबसे पहले आपकी दवाई लेता हूँ, बाकी सब काम बाद में करता हूँ। वो मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में बहुत थकन थी। 2 छोटे बच्चों के साथ पूरे घर की जिम्मेदारी वो अकेले उठा रहा था।
बड़े दोनों चालाकी से पहले पोर्शन का बहाना करके अलग हुए और फिर इस घर से ही चले गए कि बच्चों के स्कूल कॉलेज वहाँ से पास हैं। जैसे मैं समझती नहीं, राशिदा बेगम ने दुखी अंदाज में कहा। मोहसिन खामोश बैठा रहा कि उसके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। याद आया, इस महीने हुमैरा के बेटे के पास होने की खुशी में फंक्शन भी आ रहा है, इस पर भी कुछ देना होगा। राशिदा बेगम ने जल्दी से नया खर्चा बताया। मोहसिन परेशान हो गया। मैं कोशिश करता हूँ किसी से उधार ले लूँ, मेरी तनख्वाह से तो महीना मुश्किल से गुजरता है। वो परेशानी से कहकर वहाँ से चला गया। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वो अकेला कितनी जिम्मेदारी उठा रहा है, मगर तुम नए खर्चे बताने से बाज नहीं आती हो। अब्दुर्रहमान गुस्से से बोले। अब बेटी के घर जाना है तो क्या खाली हाथ जाऊँ? वो मुँह बनाकर रह गईं। अपनी चादर देखकर पाँव फैलाओ। मोहसिन के भी बीवी बच्चे हैं। महंगाई का आलम देखो, बिजली के बिल ही काबू में नहीं आ रहे हैं। सफ़ेद पोश के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। उस्मान और अनवर भी खर्चा देते हैं, इससे ये इजाफी खर्चे पूरे किया करो। वो नरमी से समझाने लगे। राशिदा बेगम सर हिलाकर रह गई, मगर उन्होंने किया वही जो उनकी मर्ज़ी थी, क्योंकि उस्मान और अनवर के भेजे पैसे वो पहले ही नादिया और हुमैरा पर मुख्तलिफ बहानों से खर्च कर चुकी थी। नाइला ने जब मोहसिन को फालतू के खर्चे के लिए उधार के बोझ के नीचे आते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वो अपनी सास से मज़ीद बदगुमान हो गई, जिन्हें सिवाय बेटियों के कुछ नज़र नहीं आता था। काश ताहिरा भाभी और फरहाना भाभी की तरह हम भी अलग हो जाएं। अब वो अक्सर ऐसी बातें सोचती। उसे अंदाज़ा था कि वो लोग गलत नहीं थीं, यहाँ के हालात गलत बना दिए गए। सर्दियों की 10 दिन की छुट्टियां हैं। बच्चों ने ज़िद की कि ये छुट्टियां नानी और नाना अब्बू के साथ गुजारनी हैं। हुमैरा ने हंसते हुए कहा। नादिया ने भी सर हिलाया। यहाँ के हालात नहीं बदले। नाइला चाय बना रही थी जब ताहिरा किचन में दाखिल हुई। वो सब भी आज मिलने आए हुए थे। ताहिरा की बड़ी बेटी ने FSC में बहुत अच्छे नंबर्स लिए थे, इसलिए वो मिठाई देने आए थे। नहीं, क्योंकि ये उनके बाबुल का आंगन है, नाइला ने तल्खी से कहा। मगर अफसोस वो इस आंगन को वीरान करने पर तुली हुई हैं। ताहिरा ने गहरी सांस ली। नाइला ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। उसने सर हिलाया, जैसे उसके अंदर की सोचों को पढ़ लिया हो। कई साल हमने भी ससुराल की वैसे ही खिदमत की जैसे हर अच्छी और घर को बनाने वाली बहू करती है। हमने भी कोशिश की कि अच्छे अमल से अपनी जगह बना लें, मगर ऐसा नहीं हुआ। बहुत कुछ बर्दाश्त करते हुए जब वो वक्त आ गया कि हमारे बच्चों का रोशन मुस्तकबिल हमारे सामने आ खड़ा हुआ तो हमें फ़ैसला लेना पड़ा। ताहिरा ने गहरी सांस ली। नंदों के मैके आकर रहने से ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब हमारा हक भी उन्हें दे दिया जाता है। अगर कोई नंद 10 दिन या 1 महीना मैके आकर रह रही है तो वो इस घर को अपना घर समझकर क्यों नहीं चलती। बेदरेक बिजली का इस्तेमाल, खाने पीने में नखरे, नित नई फरमाइशें। हम अपने बच्चों को हालात के मुताबिक चलने का दर्स देते, मगर जब वो दूसरे बच्चों को मनमानी करते देखते तो हमसे ज़िद करते, बहस करते। बच्चों को सवाल करने से कौन रोक सकता है? हम भी नहीं रोक सके थे। इसलिए घरेलू सियासत का जहर उनके अंदर उतारने के बजाय हम खामोशी से अलग हो गए। अब बच्चे अपने हालात के मुताबिक चलते हुए शिकवा नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके वालिदैन की क्या हैसियत है। ताहिरा ने उदासी से कहा। नाइला इसकी बातों से मुत्तफिक थी कि वो भी इन हालात से गुजर रही थी। महंगाई ने जहां अपना भरम कायम रखना मुश्किल कर दिया था, वहां मेहमानों का लंबे अरसे के लिए आकर रहना, फरमाइशें करना, मेज़बान को मुश्किल में डालना सरासर गलत अमल था, जिसकी ममानियत तो हमारे मज़हब में भी की गई है। या तो सादगी को अपना कर जो कुछ मुयस्सर है सब मिलकर खाएं, सब इत्तेफाक से रहें और मिलजुल कर काम करें, मगर 10 अफराद का काम एक अकेली जान पर डालना कहाँ का इंसाफ था। वो दोनों दुख सुख करते हुए ये नहीं देख पाई कि अब्दुर्रहमान ने उनकी बातें सुन ली थीं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके आंगन की वीरानी की वजह उनकी अपनी औलाद ही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? राशिदा बेगम ने हैरानी से मिजाजी खुदा की तरफ देखा। नादिया और हुमैरा भी साकित रह गई थीं। इसमें क्या गलत है? नाइला बेटी अकेली क्या क्या करेगी? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर हुमैरा और नादिया का लंबे अरसे के लिए मैके आकर रहने का दिल करता है, जो घर में पका है वो खामोशी से खाएं, अपने सब काम खुद किया करें, किसी पर कोई बोझ मत डालें। मैं नहीं चाहता कि नाजायज़ बातों के बोझ से ये बचे कुचे रिश्ते भी टूट जाएं। वो अपनी बात पर कायम थे। मगर मेरी बेटियां मैके आराम करने आती हैं, वो क्यों काम करें? राशिदा बेगम ने नागवारी से कहा। अगर माशरती निज़ाम को मजबूत बनाना है और रिश्तों को जोड़ कर रखना है तो सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी, वरना कल को ये ना हो
کہ बाबुल के आंगन में सिर्फ खामोशी बाकी रह जाए, सब पंछी नए जहान की तरफ उड़ जाएं। उनके लहजे की उदासी पर राशिदा बेगम पहली बार ठिठकी थीं। ईमानदारी से सोचें, मोहसिन और नाइला अभी ज़ुबान से शिकवा नहीं कर रहे। नादिया और हुमैरा के मैके आने पर वो बढ़ चढ़ कर आवभगत करते हैं, मगर उनके जाने के बाद कितना अरसा वो दूसरों का कर्ज उतारने में लगा देते हैं। खून के रिश्ते एक दूसरे पे तकलीफ़ और बोझ क्यों बने। मोहसिन ने अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए भी कुछ करना है, सोचना है। इसे इतना मत आजमाएं, कल को वो भी चला गया तो हम बूढ़े मियाँ बीवी अकेले रह जाएंगे। वो थके लहजे में कहकर कमरे से बाहर चले गए। नादिया और हुमैरा ने एक दूसरे की तरफ देखा और निगाहें चुरा लीं। वो जानती थी कि बहुत से मामलात में वो हमेशा अपने भाइयों और भाभियों को सताती और तंग करती थी। आज जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके बाबुल का आंगन उनकी हरकतों और घरेलू सियासत की वजह से खाली हो रहा है, तो वो डर गई कि अगर ये दर भी बंद हो गया तो वो मान और लाड की गठरी उठाए किस दरवाजे पर दस्तक देंगी। रात के खाने में क्या बनाऊं? नादिया बाजी के बच्चे तो चावल पसंद करते हैं, मगर हुमैरा बाजी के बच्चे रोटी शौक़ से खाते हैं। और नाइला मसरूफ़ अंदाज में कहती अंदर आई, बस एक सालन बना लो, अभी ये दोनों कई दिन इधर ही हैं, सब चीज़ें बारी बारी बन जाएंगी। राशिदा बेगम ने संजीदगी से कहा। नाइला ने हैरानी से देखा, एक सालन? वो हैरान थी। अम्मा ठीक कह रही हैं, मैं आपकी मदद करवाती हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। नादिया ने जल्दी से कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। हुमैरा भी सर हिलाती उसके पीछे कमरे से चली गई। नाइला हैरान थी कि इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई है। वो सर झटक कर उनके पीछे गई। राशिदा बेगम कमरे में बैठी बाहर से आती नंदों और भाभी की हंसती मुस्कुराती आवाज़ों को सुनते हुए मुस्कुरा दी। बाबुल के आंगन तभी आबाद रह सकते हैं जब सब रिश्तों में तवाज़ुन रखा जाए। कई रिश्ते गंवा कर बिल आखिर वो कुछ रिश्ते बचाने में कामयाब हो गई थीं। इसी का नाम ज़िंदगी है, कभी शय कभी मात।